us understand what is meant by extension. Now the word extension is derived from the Latin word which means ex meaning out and tensio meaning stretching. So stretching out is the meaning of extension. The word extension came originally in USA during 1914, which means a branch of university for students who cannot attend the university proper. मतलब पहले 1914 में एक्सटेंशन वर्ड यूएसए में ओरिजिनली यूज किया जा रहा था, जहां पे एक ब्रांच ऑफ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश की थी, जहां पे जो स्टूडेंट्स रेगुलरली कॉलेज अटेंड नहीं कर पाते थे, यूनिवर्सिटी अटेंड नहीं कर पाते थे, उनके लिए एक स्पेशल ब्रांच स्टार्ट की थी और उसे उन्होंने नाम दिया था एक्सटेंशन. सो इन अदर वर्ड्स वी कैन से एक्सटेंशन इज द आउट ऑफ स्कूल सिस्टम ऑफ एजुकेशन. स्कूल से बाहर जो एजुकेशन होता है उसे हम एक्सटेंशन कह सकते हैं. ना एजुकेशन इज द इंटीग्रल पार्ट ऑफ एक्सटेंशन. द बेसिक कंसेप्ट ऑफ एक्सटेंशन इज द एजुकेशन. एजुकेशन और एक्सटेंशन ये दोनों एक साथ जुड़े हुए हैं. So extension means that type of education which is stretched out to the people in the rural areas beyond the limits of educational institutions to which the formal type of education is normally confined. हमारा जो फॉर्मल एजुकेशन है तो वो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के साथ रिलेटेड होता है, लेकिन एक्सटेंशन एजुकेशन जो है वो आउट ऑफ स्कूल, आउट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट वो एजुकेशन प्रोवाइड करता है, स्पेशली इन द पीपल हु आर लिविंग इन द रूरल एरियाज. सो फर्स्ट विल सी व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन. It can be defined as it is the production of desirable changes in knowledge, that is things known, attitude, things felt, and skills, that is things done, either in all these three or any of the one. So अगर एजुकेशन ये एक प्रोडक्ट क्या है, वी एक्सेप्ट द डिजायरेबल चेंज. एक ह्यूमन को एजुकेट कर रहे हैं मतलब क्या कर रहे हैं, उसके आइदर नॉलेज, एटीट्यूड या स्किल्स, इस तीनों में एक या तीनों में भी डिजायरेबल चेंजेस लाना, उसे हम एजुकेशन कहते हैं. सो इन शॉर्ट वी कैन रिमेम्बर इट एज KS, change, desirable changes, bringing desirable changes in knowledge, attitude and skill. This is the education. Now there are different types of education. First one is the informal education. Informal education ये lifelong process है. It is a lifelong process in which persons acquire knowledge, skills, attitudes and insights from daily experience and exposure to the environment at home, at work or at play. So जो भी लाइफ, ये इनफॉर्मल एजुकेशन ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. एक्सपीरियंस से जो हम सीखते हैं उसे हम इनफॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. देन नॉन फॉर्मल एजुकेशन, इट इज अ ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमैटिक एजुकेशनल एक्टिविटी कैरिड आउट आउटसाइड द फ्रेमवर्क ऑफ फॉर्मल सिस्टम. मतलब एजुकेशन ये भी एक ऑर्गेनाइज्ड एजुकेशन सिस्टम है, सिस्टमैटिक है, लेकिन ये आउटसाइड द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में के लिए कन्फाइंड नहीं है, ये आउटसाइड द फॉर्मल सिस्टम ये एजुकेशन दिया जाता है, तो उसे हम नॉन फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल adult education, vocational education, functional literacy, continuing education, extension education, these are the example for non-formal education. The next we have the formal education. It is highly institutionalized, chronologically graded, hierarchically structured, and education starting from primary school and reaching up to university education. जो हम primary school मतलब right from our nursery, KG, first standard, second standard up to our university level education. This is chronologically and hierarchically structured. आप डायरेक्ट फर्स्ट स्टैंडर्ड से थर्ड स्टैंडर्ड नहीं जा सकते, तो इट इज हायरार्किकली स्ट्रक्चर्ड, तो उसके लिए उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. वो हाईली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड है. अब हमें अगर फॉर्मल एजुकेशन लेना है तो हमें एक इंस्टीट्यूशन में जाना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा, कॉलेज में जाना पड़ेगा, तो उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं. Then basic definitions related to extension. We'll see some basic definitions. First one is the extension education. It is applied social science consisting of relevant content derived from physical, biological and social science, and in its own process synthesized into a body of knowledge, concepts, principles and procedures oriented to provide non-credit out of school education largely for the adults.
एक्सटेंशन एजुकेशन का सिंपल मीनिंग क्या है? ये अप्लाइड सोशल साइंस है जिसमें हम फिजिकल, बायोलॉजिकल और सोशल साइंस से जो भी नॉलेज, रिलेवेंट कंटेंट है वो लेते हैं और आउट ऑफ स्कूल जो पीपल है, मतलब रूरल एरियाज में फार्मर्स है, अडल्ट है, उन्हें हम वो सिखाते हैं, प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर्स उन्हें हम सिखाते हैं, कंसेप्ट सिखाते हैं, तो उसे हम एक्सटेंशन एजुकेशन कहते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन सर्विस. It refers to program for agriculture development and rural welfare which employs extension process as means of program implementation. एक्सटेंशन सर्विस में क्या होता है? जो भी प्रोग्राम एग्रीकल्चर डेवलपमेंट एंड रूरल वेलफेयर के लिए बनाए गए उस प्रोग्राम को एक्सटेंशन प्रोसेस में द्वारा प्रोग्राम इंप्लीमेंट किया जाता है, उसे हम एक्सटेंशन सर्विस कहते हैं. नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन प्रोसेस. It is the working of with rural people throughout the school education along those lines of their current interest and need which they are closely related to gain the livelihood, improving the physical level of living of rural families and fostering the rural welfare. मतलब एक्सटेंशन प्रोसेस में क्या होता है? इज दैट वर्किंग विद द रूरल पीपल. एक्सटेंशन वर्कर्स जो है वो रूरल पीपल्स के साथ काम करते हैं और ये आउट ऑफ स्कूल एजुकेशन है और जहाँ पे करंट इंटरेस्ट, करंट नीड जो है उसके ऊपर काम किया जाता है, जिससे उनकी लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग या जो भी उनकी रूरल लाइफ होती है वो इजी हो, डेवलप लाइफ, वेलफेयर हो उनका, ये सारे उसे हम एक्सटेंशन प्रोसेस कहते हैं. देन देयर डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एजुकेशन एंड एक्सटेंशन एजुकेशन. फॉर फॉर्मल एजुकेशन इट इज द टीचिंग इज लार्जली कन्फाइंड टू द प्रीमाइसेस ऑफ द इंस्टीट्यूट. जो भी टीचिंग होती है वो इंस्टीट्यूशन में होते हैं. और एक्सटेंशन एजुकेशन एज इट इज इनफॉर्मल एजुकेशन. यहाँ सॉरी इट इज अ नॉन फॉर्मल एजुकेशन. एक्सटेंशन एजुकेशन इज नॉन फॉर्मल एजुकेशन. तो उसमें क्या है? लार्जली आउटसाइड द फोर वॉल्स ऑफ द इंस्टीट्यूट, इज आउट ऑफ स्कूल. यहाँ पे आउट ऑफ स्कूल टीचिंग होती है. सो लर्नर्स आर होमोजीनियस विथ कॉमन गोल्स. फॉर्मल एजुकेशन में क्या होता है? लर्नर होमोजीनियस होते हैं, जो भी उनके गोल्स होते हैं वो कॉमन होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक स्टैंडर्ड के बच्चे, फर्स्ट स्टैंडर्ड के बच्चे रहते, तो वो उनकी लर्निंग, जो भी लर्निंग एबिलिटी है, उनके जो गोल्स है उनमें वो कॉमन रहते हैं. सो हमें वहाँ होमोजीनियस कहते हैं. लेकिन नॉन फॉर्मल या एक्सटेंशन एजुकेशन में क्या होता है? लर्नर्स जो होते हैं वो हेट्रोजेनियस होते हैं. तो थोड़े यूथ्स होते हैं, एडल्ट्स होते हैं, थोड़े वेल वी कैन से we'll have old age people, middle age people. So based on this we have different learners group, they are heterogeneous. Then in formal education we have fixed curriculum, students are examined and degrees are awarded. हमारा कोर्स करिकुलम फिक्स्ड होता है फॉर्मल एजुकेशन में, लेकिन नॉन फॉर्मल या एक्सटेंशन एजुकेशन में कोई करिकुलम फिक्स नहीं रहता, डिपेंडिंग अपॉन द नीड्स ऑफ लर्नर. लर्नर को क्या सीखना है, किस प्रॉब्लम पे उन्हें फोकस करना है, तो किस प्रॉब्लम पे उन्हें सोल्यूशन चाहिए, उसके आधारित पे ये प्रोग्राम का प्लान किया, एक्सटेंशन प्रोग्राम प्लान किया जाता है. एंड यहाँ पे कोई एग्जामिनेशंस नहीं होते. नो डिग्रीज अवॉर्डेड फॉर नॉन फॉर्मल एजुकेशन. देन इन फॉर्मल एजुकेशन नॉलेज फ्लोज फ्रॉम टीचर टू लर्नर. यहाँ पे टीचर होता है, टीचर टू लर्नर जो नॉलेज होता है वो फ्लो होते हैं. लेकिन नॉन फॉर्मल में क्या होता है? एक्सटेंशन वर्कर ऑल्सो लर्न फ्रॉम दोज हु टीचेस एंड ही टीचेस थ्रू लोकल लीडर्स. मतलब एक्सटेंशन वर्कर होता है वो लोकल लीडर्स को शेयर करता है नॉलेज, और लोकल लीडर्स उनके रूरल पॉपुलेशन को शेयर करते हैं. और कई बार क्या होता है? whatever they have indigenous knowledge that is also shared to the extension worker and in turn to the scientist. तो यहाँ पे horizontal flow of knowledge होता है नॉन फॉर्मल में, और फॉर्मल में vertical flow. And then in our formal approach is from principles to problem. पहले हम principles देखते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हम कोई थ्योरी लर्न कर रहे हैं तो पहले थ्योरी लर्न करते हैं और उस थ्योरी के बाद एप्लीकेशंस में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फॉर एग्जाम्पल मैथ्स में हम पहले थ्योरम देखते हैं और थ्योरम के बेस पे हम प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. लेकिन नॉन फॉर्मल में क्या आता है? पहले प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम क्या फेस करे रूरल पॉपुलेशन, उसके ऊपर पे बात होती है और उससे प्रिंसिपल्स डेवलप किए जाते हैं. सो हियर अप्रोच विल बी फ्रॉम प्रॉब्लम टू प्रिंसिपल्स. Next we'll see the scope of extension education. Now extension appears to have unlimited scope in situation where there is need for creating awareness amongst the people and changing their behavior by informing them and educating them.
एक्सटेंशन का जो स्कोप है वो बहुत अनलिमिटेड है. वी कैन नॉट कन्फाइंड इन few situations, it is applied in all situations. हर एक सिचुएशन में एक्सटेंशन का स्कोप इंपॉर्टेंस हमें पता चलता है जब हमें लोगों में अवेयरनेस क्रिएट करने की जरूरत है या कि उनके बिहेवियर में चेंजेस लाने की जरूरत है बाय इन्फॉर्मिंग देम और बाय एजुकेटिंग देम. नाउ किल्से एंड हर्नी दे हैव आइडेंटिफाइड 9 areas of program emphasis which indicated the scope of agricultural extension. तो एग्रीकल्चर एक्सटेंशन का स्कोप क्या, इंपॉर्टेंस कहाँ है, इन्होंने आइडेंटिफाई किया. तो पहला है एफिशिएंसी इन एग्रीकल्चर प्रोडक्शन. ना नई टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटीज, आईसीआर नई टेक्नोलॉजीज को डेवलप करते हैं तो वो फार्मर्स तक पहुंचाने का काम कौन करता है, एक्सटेंशन वर्कर, एक्सटेंशन डिपार्टमेंट काम करता है. तो उससे एग्रीकल्चर इनडायरेक्टली उसका एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इंक्रीज किया है. ना एफिशिएंसी इन मार्केटिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, यूटिलाइजेशन, जो भी न्यू मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज है या डायरेक्ट मार्केटिंग, न्यू इंटरवेंशन इन मार्केटिंग जो है वो सारे चीजें रिसर्च होता है. तो रिसर्च फील्ड से रिसर्चर्स और फार्मर्स के बीच जो एक ब्रिज बिल्ड करता है वो एक्सटेंशन वर्कर बिल्ड करता है. तो यहाँ पे एक्सटेंशन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल फ्रॉम ट्रांसफरिंग टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस फ्रॉम रिसर्चर टू फार्मर. देन कंजर्वेशन, डेवलपमेंट, यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, उसमें भी एक्सटेंशन का स्कोप है. मैनेजमेंट ऑफ फार्म एंड इन मैनेजमेंट ऑन द फार्म एंड इन द होम ऑल्सो, फार्म लिविंग, यूथ डेवलपमेंट, लीडरशिप डेवलपमेंट हेल्प करने में भी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन बहुत बड़ा रोल प्ले करता है. कम्युनिटी डेवलपमेंट एंड रूरल एरिया डेवलपमेंट and public affairs. So these are the 9 areas where we can find the scope of agriculture extension. Now extension is the integral part of agriculture and rural development programs in India. जो भी इंडिया में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स आते हैं, लाइक जैसे कि स्वर्ण ग्राम रोजगार योजना और IRDP, वो सारे प्रोग्राम्स, उसमें एक्सटेंशन ये एक बहुत बड़ा इंटीग्रल पार्ट होता है. The progress in the production which has been achieved in agriculture, horticulture, animal husbandry, veterinary, social forestry, etc. may be thought as proportional to the strength of extension service of relevant government departments. जो भी हम आज तक कंट्री में एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर या अलाइड जो भी अलाइड एग्रीकल्चर साइंस है उनमें जो भी अचीवमेंट हुए हैं, जो भी फार्मर्स का इम्प्रूवमेंट हुआ है, उसका हम क्रेडिट एक्सटेंशन को ही दे सकते हैं, क्योंकि रिसर्च प्लॉट से फार्मर्स तक पहुंचे, टेक्निक्स को पहुंचाने का काम एक्सटेंशन ने किया है. सो वी कैन से दैट बेस्ड ऑन दिस वी हैव द फॉलोइंग स्टेटमेंट which will amplify the scope of extension. First is the extension is the fundamentally a system of out of school education for adults and youth alike. It is a system where people are motivated through proper approach to help themselves by applying science in their daily lives in farming, homemaking and community living. So extension एक fundamental system है out of school education जो adults और youths के लिए है, जहाँ पे वो extension activities से people motivate होते हैं और अपने daily life में science को apply करके अपना life well-being lead a well life. Now extension education is for all village people. हम ऐसे नहीं कह सकते कि एक ही ग्रुप के लिए. It is for all village people. Extension is bringing about desirable changes in knowledge, attitude, skills and skills of the people. That is desirable changing in KAS. And extension is helping people to help themselves. This is the philosophy of extension. Extension, it helps the people to help themselves. Then we can say extension is working with men and women, boys and girls to answer their felt needs and wants. जो भी उनके felt needs है, उन्हें लगा उन्हें जिसकी जरूरत उन्हें महसूस हुई है, उनके wants जो उन्हें लगे है कि वो फुलफिल होने चाहिए, उसके ऊपर वर्क करने के लिए एक्सटेंशन हेल्प करता है. एक्सटेंशन इज द टीचिंग थ्रू लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग. यहाँ पे एक्सटेंशन में जो भी नए मेथड्स एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हो, प्रोसेसिंग में जो भी मेथड्स डेवलप हुए हैं, रिसर्च हुआ है उन पे, वो वहाँ पे डेमोन्स्ट्रेट किया जाता है और उन्हें लर्निंग बाय डूइंग एंड सीइंग इज बिलीविंग इसके आधारित पे टीचिंग किया जाता है. ना एक्सटेंशन इज वर्किंग इन हार्मनी
विद द कल्चर ऑफ द पीपल। यहाँ पे जब भी एक्सटेंशन एक्टिविटीज होते हैं विलेज में, तो वहाँ पे उस विलेज का कल्चर क्या है उसके बारे में पहले सोचा जाता है, उसके अकॉर्डिंगली काम किया जाता है। नेक्स्ट इज द एक्सटेंशन इज द टू-वे चैनल, दैट इज it brings scientific information to village people and also it takes the problem of village people to the scientific institutes for the solution। एक प्रॉब्लम है उनके लिए वो साइंटिफिक सोल्यूशन देते हैं, और उसी वक्त और कोई प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स फिर से साइंटिस्ट के पास तक पहुंचाने का काम करते हैं। सो इट इज अ टू-वे चैनल। Now extension is working together, that is to expand the welfare and happiness of the people with their own families, their own villages, their own country and the world। यहाँ पे एक ही पर्सन के लिए एक्सटेंशन वर्क नहीं होता, इट इज फॉर द ग्रुप, इट इज फॉर अ पर्टिकुलर ग्रुप, फॉर अ पर्टिकुलर village, for a country or and the world। Now extension is development of individuals in their day-to-day living, development of their leaders, their society and their world as a whole। So it is development of the individual along with the world as a whole। So you can see as I have told you, it is extension worker जो है वो रिसर्च और फार्मर के बीच में जो कनेक्शन है वो एक्सटेंशन वर्कर है। ही वर्क्स एज अ ब्रिज बिटवीन द रिसर्चर एंड द फार्मर। The need for extension arises out of the fact that the condition of rural people in general and the farm people in the particular has got to be improved। एक्सटेंशन वर्क का नीड कब हमें महसूस होती है, जब रूरल पीपल पर्टिकुलरली फार्मर्स जो है उनकी कंडीशन इंप्रूव होनी चाहिए, उन्हें साइंटिफिक फार्मिंग, साइंटिफिक टेक्नोलॉजी जो है वो समझ में आनी चाहिए, वो उन्हें यूज करने के लिए, मोटिवेट करने के लिए हमें एक्सटेंशन एक्टिविटीज की जरूरत पड़ती है। So there is a gap between what is the actual situation and what to be the desirable situation। डिजायरेबल सिचुएशन क्या है और एक्चुअली फार्मर्स की सिचुएशन क्या है, उसमें बहुत सारी गैप होती है, और इस गैप को नैरो डाउन करने, गैप को कम करने के लिए हमें साइंस और टेक्नोलॉजी की जरूरत होती है। और ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ्रॉम रिसर्च लैब टू फार्मर्स जो लेते हैं वो एक्सटेंशन के थ्रू जाता है। अकॉर्डिंग टू सुपर, रिसर्चर्स नाइदर हैव द टाइम नॉर दे आर इक्विप्ड फॉर job for persuading villagers to adopt scientific method and to ascertain from them the rural problems। Similarly, it is difficult for all farmers to visit research stations and obtain the first-hand information। Thus, there is need for agency to interrupt the findings of the research to farmers and to carry the problems of farmer to research solution। This gap is filled by the extension agency। मतलब यहाँ पे क्या होता है, रिसर्चर्स के पास ना ही उतना टाइम होता है, ना ही उनके पास उतने इक्विपमेंट्स होते हैं कि वो हर एक विलेज में जाके उन्हें साइंटिफिक मेथड्स अडॉप्ट करने के लिए एनकरेज करे, ना ही हर एक फार्मर को पॉसिबल है कि वो रिसर्च स्टेशन पे आए और इंफॉर्मेशन गेन करे और उनके प्रॉब्लम्स उन्हें बताए। तो इसलिए एक्सटेंशन एजेंसी ये वर्क बिटवीन द रिसर्चर और फार्मर के बीच में वर्क करते हैं, जहाँ पे जो भी रिसर्च होता है वो फार्मर्स तक पहुंचाते हैं और फार्मर्स के प्रॉब्लम जो है वो रिसर्चर या साइंटिस्ट तक पहुंचाते हैं। तो इट वर्क्स इन एज अ चैनल बिटवीन द रिसर्च एंड द फार्मर। Then we'll see the principles of extension education। According to Millard Horton, the 4 great principles underlying the extension services are: first principle is individual is supreme in the democracy। इंडिविजुअल है वो सुप्रीम है डेमोक्रेसी में। होम इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ सिविलाइजेशन। अगर कोई सिविलाइजेशन स्टार्ट होता है वो तो एक घर से, एक फैमिली से स्टार्ट होता है। द फैमिली इज द फर्स्ट ट्रेनिंग ग्रुप ऑफ ह्यूमन रेस and the foundation of any permanent civilization must rest on the partnership of man and the land। So these are the 4 principles of extension service given by the Millard Horton। Now our objective in extension work is to help people reach higher levels of living physically, mentally and spiritually। तो एक्सटेंशन का ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन वर्क का, कि लोगों तक उनके लिए लेवल ऑफ लिविंग जो है फिजिकली, मेंटली और स्पिरिचुअली भी हायर लेवल पे जाना चाहिए। तो टू रीच दिस हायर लेवल ऑफ लिविंग, पीपल मस्ट बी एजुकेटेड, दे मस्ट बी ट्रेन्ड टू मेट देयर रिस्पॉन्सिबिलिटीज इन रिलेशन टू गॉड, टू देयर नेबरहुड्स एंड टू देमसेल्व्स। जो भी उनके स्पिरिचुअल, मेंटल और फिजिकल वो सारे गोल्स अचीव करने के लिए उन्हें एजुकेशन और ट्रेनिंग दी जानी चाहिए। Now they must know how to meet the responsibilities imposed by their government। So we work with them as individual, as families in the home and with their
एनवायरमेंट। एक्सटेंशन वर्कर जो होता है वो एज ए इंडिविजुअल उनके फैमिली के मेंबर की तरह और उनके एक एनवायरमेंट का भाग की तरह उन्हें काम करना पड़ता है। Next, principles underlying the philosophy of extension. First is the extension is the organization to plan, execute and evaluate programs with the people and not for the people. जो भी extension का पहला principle क्या है? extension में हम क्या करते हैं? हम एक प्रोजेक्ट को ऑर्गेनाइज करते हैं, प्लान करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं और उस प्रोग्राम को इवेल्युएट भी करते हैं। लेकिन ये सब उन लोग जो सपोज एक विलेज में एक्सटेंशन प्रोग्राम होता है तो उनके साथ साथ होता है, ना कि उनके लिए। इट मींस एक्सटेंशन इज वर्किंग विद द पीपल एंड नॉट फॉर द पीपल। एक्सटेंशन इज एन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप टू टीच पीपल एंड मोटिवेट देम टू एक्शन एंड नॉट टू डिक्टेट व्हाट पीपल शुड डू। यहाँ पे एक्सटेंशन में हम डिक्टेट, हम ऑर्डर नहीं देते कि पीपल लोगों को कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, लेकिन हम पीपल वहाँ लोगों को हम सिखाते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं एक एक्शन को करने के लिए, ना कि हम उन्हें जबरदस्ती वो करने के लिए बोलते हैं। एक्सटेंशन शुड हेल्प पीपल टू हेल्प देमसेल्फ। दिस इज द मेन फिलोसफी ऑफ एक्सटेंशन। लोगों को मोटिवेट करे कि वो खुद की भी हेल्प करे और उनके साथ जो लोग हैं उन्हें भी हेल्प करे। एक्सटेंशन शुड बी बेस्ड ऑन द फेल्ट नीड्स एंड एनलाइटेंड डिजायर्स ऑफ द पीपल। एक्सटेंशन एक्टिविटीज जो है उनके फेल्ट नीड्स, मतलब उन्हें किस चीज की जरूरत है, किस प्रॉब्लम में उन्हें सोल्यूशन की जरूरत है, वो अर्जेंट नीड्स जो है उस पे पहले फोकस देना चाहिए। एक्सटेंशन शुड रीच पीपल वेयर दे आर। यहाँ पे एक्सटेंशन में क्या होता है, जहाँ लोग हैं वहां तक एक्सटेंशन वर्कर को जाना है, ना कि वो लोग एक्सटेंशन वर्कर के पास नहीं आएंगे। एक्सटेंशन वर्कर को जहां भी लोग होंगे वहां तक उसे जाना पड़ेगा। ना एक्सटेंशन एम्स एंड ऑब्जेक्टिव शुड नॉट बी rigid but it should be flexible, that is flexible in time and date. एक्सटेंशन एम्स एंड एक्सटेंशन प्रोग्राम है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स है वो रिजिड नहीं होने चाहिए, बल्कि अकॉर्डिंग टू टाइम, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन इजीली हमें चेंज करने के लिए आने चाहिए। तो इसलिए एक्सटेंशन प्रोग्राम जो होता है वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए। एक्सटेंशन शुड चेंज द पीपल एंड नॉट द सब्जेक्ट मैटर। नेक्स्ट, एक्सटेंशन शुड वर्क इन हार्मनी विद द कल्चर ऑफ द पीपल। उस विलेज का कल्चर के अगेंस्ट अगर एक्सटेंशन वर्कर जाएगा तो वहां पे उसे कोई सपोर्ट नहीं करेगा, कोई किसी को उसके जो एक्चुअल में वो सिखाने आए उसके बारे में वो थिंक नहीं करेंगे। लेकिन अगर उसने उस विलेज का कल्चर फॉलो करके कल्चर के थ्रू उन्हें सिखाने की कोशिश की तो वो इजीली सीख जाएंगे। ना डेमोक्रेटिक प्रोसीजर मस्ट बी एडॉप्टेड इन फॉर्मुलेशन एंड एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोग्राम, दैट इज ग्रुप आइडियाज। जो डेमोक्रेटिक प्रोसीजर्स फॉलो करने चाहिए। एंड द डेसिग्नेटेड प्रोग्राम शुड गिव ग्रेटेस्ट बेनिफिट to greatest number of people in the society. So these are the principles under the philosophy of extension. Then we'll see philosophy of extension. Philosophy is the pursuit of, what is philosophy? It is the pursuit of wisdom, a body of general principle or laws of a field of knowledge. यहाँ पे एक फील्ड है जहाँ पे उसके लॉज एंड प्रिंसिपल को डिफाइन करते हैं, उसे हम फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन कहते हैं, या सॉरी हमें उसे हम फिलोसॉफी कहते हैं। ना फिलोसॉफी ऑफ अ पर्टिकुलर डिसिप्लिन वुड फर्निश द प्रिंसिपल्स और गाइडलाइंस विथ विच टू शेप और मोल्ड द प्रोग्राम्स और एक्टिविटीज रिलेटिंग टू दैट डिसिप्लिन। उस डिसिप्लिन के बारे में प्रिंसिपल गाइडलाइंस जो होते हैं उसे हम फिलोसॉफी कहते हैं। ना फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन वर्क इज बेस्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ एन इंडिविजुअल इन प्रमोशन ऑफ प्रोग्रेस फॉर रूरल पीपल एंड फॉर द नेशन। तो एक्सटेंशन वर्क के फिलोसॉफी किस पे आधारित है? एक इंडिविजुअल के लिए उसका प्रोग्रेस के लिए क्या इम्पोर्टेंट है उसके बारे में थिंक करना, उसे हम फिलोसॉफी ऑफ एक्सटेंशन वर्क कह सकते हैं। ना एक्सटेंशन एजुकेटर शुड वर्क विद द पीपल टू हेल्प देम डेवलप देमसेल्फ एंड अचीव द सुपीरियर वेलबींग। यहाँ पे एक्सटेंशन एजुकेटर से एक्सटेंशन वर्कर है वो लोगों के साथ काम करके उन्हें हेल्प करनी चाहिए अपनी खुद की डेवलपमेंट करने के लिए। Now the basic philosophy of extension work is that it is directed at conversion of whole man, determines the approach that must be adopted for its implementation. Now compulsion or even a beneficent act does not necessarily improve the man.
अगर हम किसी की चीज की कंपल्शन करते हैं तो वो ऐसे जरूरी नहीं है कि उससे उस मैन में इंप्रूवमेंट है. द ओनली वे टू सिक्योर कोऑपरेशन ऑफ अ पर्सन फॉर बेटरमेंट इज टू एजुकेट हिम. हम कब एक पर्सन से हम कोऑपरेशन या साथ पा सकते हैं, जब हम उन्हें उसे एजुकेट करेंगे. So therefore primary aim is to transform the people by bringing about the desired changes in the case, that is knowledge, attitude and the skills. This is the philosophy of extension. According to Kelsey and Herne, the basic philosophy of extension education is to teach people how to think and not what to think. यहाँ पे लोगों के लिए कैसे सोचना है वो सिखाया जाता है, ना कि क्या सोचना है वो नहीं सिखाया जाता. So extension specific job is furnishing the inspiration, supplying specific advice, the technical help, counseling to see that people as individual, families, group and communities work together as a unit in blueprinting their own problems, charting their own courses, and they launch forth to achieve their objectives. So this is the extension क्या specific job क्या है, उन्हें लोगों को इंस्पायर करना, उन्हें स्पेसिफिक एडवाइस देना, टेक्निकल हेल्प प्रोवाइड करना, उन्हें काउंसलिंग देना, जिससे एज ए इंडिविजुअल, फैमिली, कम्युनिटी वो एक ग्रुप में काम करे एंड दे ब्लूप्रिंट जो भी उनके ओन प्रॉब्लम्स है उन्हें नोट करके उस प्रॉब्लम्स को कैसे हम सॉल्व कर सकते हैं इस पे वो काम करे, वो खुद एक ग्रुप की तरह काम करे. तो साउंड एक्सटेंशन फिलोसफी इज ऑलवेज लुकिंग अहेड. The next is the extension educational process. An effective educational program involves 5 essential and interrelated steps. This concept of educational process intended only to clarify the steps necessary carrying out the planned educational efforts. जो भी ये 5 steps है planned educational effort के लिए necessary है. It does not imply that these steps are definitely separate from each other. अगर हमने 5 steps में classify किया है, लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये 5 स्टेप्स एक दूसरे से सेपरेट हो, ये इंटरलिंक्ड भी हो सकते हैं. The experience shows that planning, teaching and evaluation takes place continuously in varying degrees throughout the all phases of extension activities. अगर एक extension activities है तो उसमें planning, teaching और evaluation तीनों continuously चल रहा होता है at various degrees. उसका degree of planning, teaching and evaluation में differ, but this will be continuously occurring in the extension activities. So you can see here, for first step is the situation and problem, analyzing the situation and problem, then objectives and solution, teaching the plan of work, evaluation, again reconsideration, and again from reconsideration, again new situations and problems, and this cycle continues. The first step consists of analyzing the situation and problems. Facts about the people and their enterprise, economic, social, cultural, physical, technological environment in which they live and work. That is, facts are an analysis of situation is done. This may be obtained by appropriate survey and establishing rapport with the people. वो लोगों के बारे में और उनके जो काम करने के तरीके, इकोनॉमिक, सोशल, कल्चरल, टेक्नोलॉजिकल जो इन्वायरमेंट है, जो वहाँ जहाँ पे वो रहते हैं, काम करते हैं, उसके बारे में सारे फैक्ट्स को कलेक्ट करना. और एक ऐसे कलेक्ट करते हैं बाय surveying the village. Now the response is obtained to be analyzed with the local people to identify the problems and resources available in the community. For example, after a survey in a community, an analysis of data, problem was identified as low income of farm family from their crop production enterprise. तो पहले डाटा कलेक्ट किया जाता है, उस पे एनालाइज किया जाता है अलॉन्ग विद द लोकल पीपल, और वहां पे क्या प्रॉब्लम है और उस विलेज में, उस लोकल एरिया में रिसोर्सेस क्या अवेलेबल है उस कम्युनिटी में, वो एनालाइज किया जाता है और उसके बाद एक प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया जाता है. द सेकेंड स्टेप इज द नेक्स्ट स्टेप इज डिसाइडिंग द रियलिस्टिक ऑब्जेक्टिव्स व्हिच मे बी अकम्प्लिश्ड बाय द कम्युनिटी. हमने प्रॉब्लम, फर्स्ट स्टेप में प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए क्या क्या हमें ऑब्जेक्टिव्स है वो डिसाइड करें. द लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स शुड बी सिलेक्टेड बाय इन्वॉल्विंग द लोकल पीपल. लोकल पीपल को इन्वॉल्व करके एक लिमिटेड नंबर, ऐसे नहीं कि अनलिमिटेड ऑब्जेक्टिव सेट किए, पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक लिमिटेड नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव्स को सिलेक्ट करना पड़ता है. द ऑब्जेक्टिव शुड बी स्पेसिफिक एंड क्लियरली स्टेटेड.
and on completion should bring satisfaction to the community. Objective should be state the behavioral changes in the people as well as the economic and social outcomes which are desired due to the extension activity. Now in example, first we have identified the problem that low income from the crop production enterprise. Now deeper probe into the data revealed that low income was due to the low yield of the crops, which was attributed to use of local seeds with low yield potential, application of little fertilizer, and lack of protection measures. By taking in consideration the capacity and competency of the people in the community and availability of resources, the objective was set up to increase the crop yield by 20% within the certain period of time. It was estimated that increased yield shall bring increased income which shall enhance the family welfare. तो पहले हमने देखा फर्स्ट स्टेप ने हमें क्या आइडेंटिफाई किया था, प्रॉब्लम क्या था, लो इनकम फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन एंटरप्राइज. तो उस पे हम नेक्स्ट सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, लो इनकम क्यों है, लो इनकम का रीजंस क्या क्या हो सकते हैं, लो यील्ड किसकी वजह से, लोकल सीड्स विच आर हैविंग लो यील्ड पोटेंशियल, एप्लीकेशन ऑफ लेस फर्टिलाइजर, लैक ऑफ प्रोटेक्शन मेजर्स, इसकी वजह से लो यील्ड हुआ है. तो लो यील्ड को बढ़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमारा टारगेट क्या होगा, फिर यील्ड इनकम बढ़ाने के लिए यील्ड बढ़ाना पड़ेगा. तो ऑब्जेक्टिव हमारा सेटअप क्या होता है, टू इंक्रीज द क्रॉप यील्ड बाय 20% in a certain period of time. This will be the objective of the extension activity. Now because of this 20% increase, there shall be increase in the income and there shall be welfare, family welfare. Third step is the teaching, which involves whatever the methods, new methods, scientific methods, the content which involves choosing what should be taught. क्या सिखाना पड़ेगा, हमने ये डिसाइड किया है कि हमें प्रोडक्शन 20% से इंक्रीज करना है, तो वो इंक्रीज करने के लिए हमें फार्मर्स को क्या सिखाना पड़ेगा, हाउ द पीपल, कैसे सिखाना पड़ेगा, किस मेथड्स यूज करें, डेमोन्स्ट्रेशन यूज करें, स्लाइड वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स यूज करें, तो किस मेथड्स एंड एड्स को यूज करके हम फार्मर्स को सिखा सकते हैं. इट रिक्वायर्स सिलेक्टिंग ऑफ रिसर्च फाइंडिंग्स ऑफ इकोनॉमिक एंड प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस relevant to the community and selection and combination of appropriate teaching methods and aids. For example, based on the problem identified, हमने जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड किया था लो इनकम, उसमें अपने ऑब्जेक्टिव क्या फिक्स किया, 20% राइज इन द यील्ड इन द सर्टेन पीरियड. तो उसमें हम थर्ड स्टेप में क्या करते हैं, हमें क्या उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए लोगों को क्या सिखाना पड़ेगा. तो विल teach them technology use, that is use of high yielding variety seeds, application of fertilizer, plant protection chemicals. This is the selected teaching content. And उसके लिए हम कौन से methods use करेंगे, teaching methods and aids क्या है, we'll use demonstration, result demonstration, method demonstration, we'll conduct farmers training and farm publications. These were the teaching methods, and tape recorders and the slides, these were the teaching aids. So in third step, we have decided the content and how this content will be delivered. Fourth step is evaluating the teaching. It is determining the extent to which objectives have been reached. हमने content fix किया, कैसे सिखाना है वो भी fix किया, और वो हमने knowledge transfer किया farmers को. तो fourth step में क्या होता है, जो भी हमने teaching किया उसका evaluation होता है. जो भी हमने टीचिंग किया है वो, जो भी ऑब्जेक्टिव हमने फिक्स डिसाइड किया था, दैट इज 20% राइज इन द यील्ड, वो किस हद तक हमने अचीव किया है उसे हम इवेल्युएट करते हैं. टू इवेल्युएट रिजल्ट्स ऑफ एन एजुकेशनल प्रोग्राम ऑब्जेक्टिवली, इट इज डिजायर्ड टू कंडक्ट द रीसर्वे. फिर से सर्वे होता है कि उसमें जिस फार्मर्स को हमने ट्रेनिंग दिया था उनमें उन्हें क्या रिजल्ट्स मिले हैं वो न्यू टेक्नोलॉजी यूज करने के बाद. द एविडेंस ऑफ चेंज्ड बिहेवियर शुड बी कलेक्टेड, which shall not only provide a measure of success but also indicate the deficiencies. कई बार क्या होता है कि सिर्फ सक्सेस ही नहीं, जबकि हम कहाँ पे लैक किए, हमारे टीचिंग मेथड्स में क्या डेफिशिएंसी थी, क्या फॉल्ट था, वो भी हमें पता चलता है ना. इन द कंसिडर्ड एग्जांपल, द रीसर्वे आफ्टर फिक्स्ड पीरियड ऑफ टाइम indicated that crop yield has increased by 10%. Now, it is therefore indicated that there was a gap of 10% in the crop yield in comparison to
टारगेट और ऑब्जेक्टिव। रिसर्वे करने के बाद में पता चला कि ओनली जो भी इंक्रीज यील्ड हुआ है वो 10% हुआ है, बल्कि हमारा टारगेट क्या था 20%। Now, the resurvey also indicated that there have been two important deficiencies in carrying out extension educational program. क्या दो ड्रॉबैक्स थे एक्सटेंशन एजुकेशन प्रोग्राम का, वो भी हमें यहाँ पता चलता है। सच एज देयर वाज लैक ऑफ प्रॉपर वाटर मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट के बारे में हमने फार्मर्स को बताया नहीं है, और फार्मर्स could not apply fertilizers and plant protection chemicals as per the recommendation due to lack of funds. So ये दो डेफिशिएंसी, ये दो फैक्टर्स की वजह से जो 20% हमने और टारगेट रखा था वो 10% ही अचीव हो गया। Then fifth step is reconsideration. Now the reconsideration of entire extension education program on light of results of evaluation. तो इवेल्युएट करने के बाद हमें 2 ड्रॉबैक्स मिले, तो वो 2 ड्रॉबैक्स को हम रिकंसीडर करके फिर से एक एक्सटेंशन एजुकेशनल प्रोग्राम हम प्लान करते हैं, और उस पे हम नेक्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट से, दैट इज प्रॉब्लम एंड सिचुएशन, न्यू प्रॉब्लम्स एंड सिचुएशंस के साथ स्टार्ट करते हैं। Now problems identified in the process of evaluation may become the starting point of the next phase of extension educational program unless new problems have developed or new situations have arisen in the society. So after reconsideration of results of evaluation with the people, the following teaching objectives were again set up. For example, training the farmers on proper water management practices, putting the demonstration on water management. People were advised to contact banks for obtaining production credit in time to purchase critical inputs. Thus, continuous process of extension education shall go on, resulting in the progress of the people from less desirable to more desirable situation. So ये 5 steps है और ये continuous process है extension education का. Then objectives of extension. Objectives मतलब क्या? These are the expression to the end towards which our efforts are directed. Objectives मतलब हमारा टारगेट, उस ऑब्जेक्टिव्स को हम सेट करते हैं और हमारे जो भी एक्टिविटीज है उस ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए हमारे जो भी एफर्ट्स है वो हम उस डायरेक्शन में काम करते हैं। तो these are the expression of ends. Objectives are the expression of the ends. Now there are extension of objective में पहला आता है fundamental objective. The fundamental objective of extension is the development of the people or the destination में एक people community में एक village में सारे जो भी people है उनका development ये fundamental objective है extension का. In other words, it is to develop the rural people economically, socially and culturally by means of education. Example, to increase socio-economic status and standard of living of Indian farming community. This is the fundamental objective of extension education. Then general objectives. The general objectives of extension are first to assist people to discover and analyze their problem, their felt and unfelt needs. उनके problems क्या है, उनकी महसूस होने वाली जरूरत और जिसकी जरूरत है लेकिन उनके बारे में उन्हें पता नहीं, वो डिस्कवर करने के लिए उन्हें हेल्प करना. Then to develop leadership among the people and help them in organizing groups to solve their problems. To disseminate information based on research and practical experience in such a manner that people would accept it and put it in actual practice. जो भी research हुआ है वो farmers तक पहुंचाना. To keep the research worker informed of the people problem from time to time. जो भी लोगों की problems है वो research workers तक पहुंचाना time to time, so that solutions can be offered very soon. And to assist people in mobilizing and utilizing the resources which they have and which they need from the outside. So these are the general objectives of extension education. For example, to increase the production and productivity of paddy. This we can consider as the जनरल. फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव मतलब बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है एक्सटेंशन एक्टिविटीज का कि लोगों की डेवलपमेंट, दैट इज द फंडामेंटल. जनरल मतलब पर्टिकुलर एक्टिविटी के बारे में हम जब बोलते हैं, दैट इज वी आर सेइंग अबाउट, वी आर टॉकिंग अबाउट पैडी, तो टू इंक्रीज द प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ पैडी, दिस इज द जनरल. वी आर स्पीकिंग इन जनरल अबाउट द सर्टन क्रॉप. देन वर्किंग ऑब्जेक्टिव, इट इज one which focuses on the specific activity of specific group in the selected geographic area. हम एक geographical area में extension activity कर रहे हैं, तो उस एरिया में उस स्पेसिफिक ग्रुप के लिए, स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए जो हम
टारगेट रखते हैं तो उसे हम वर्किंग ऑब्जेक्टिव कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, टू इंक्रीज द yield of PKM1 of tomato among the tomato growers of Madhukarai block in Coimbatore district. तो पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया में पर्टिकुलर ग्रुप, पर्टिकुलर जियोग्राफिकल एरिया है यहाँ पे मधुकराई ब्लॉक जो कोयम्बतूर डिस्ट्रिक्ट में है, वो पर्टिकुलर एरिया हो गया. पर्टिकुलर ग्रुप क्या है? टोमेटो ग्रोवर्स. एंड पर्टिकुलर एक्टिविटी क्या है? टू इंक्रीज द yield of the tomato. So the major objective of extension may also be categorized as material, that is increase the production and income; educational, that is change in the outlook of the people or to develop the individuals; and third is the social and cultural objective, that is development of the community.